আজকে এই ইন্দ্রসভাতে সকলকে দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা, শুভকামনা। আজকে ভাইফোঁটাও। তো বাস্তবে এই সঙ্গম যুগে বাবা আমাদেরকে যে শিক্ষা দিচ্ছেন, আত্মিক দৃষ্টিকে ঠিক রাখা, সকলকে আত্মা ভাই রূপে দেখা, বাস্তবে তারই ইয়াদগার ঘরে ঘরে পালিত হচ্ছে। এই দুই পর্বকে সামনে রেখে আজকের বাবার মহাবাক্য আমরা শুনব। আজকের ডেট 23 অক্টোবর 2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने। जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। আজকের এই মহাবাক্যে আমরা কি পেলাম? শিক্ষাও আছে, তাতে কলাও আছে। বাবা আমাদেরকে সাঁতার শেখাতে এসেছে। তো সাঁতার কাটতে আমরা কি করি? সামনের দিকটাকে একটু সরিয়ে তারপর আমরা এগিয়ে যাই, পিছনের দিকটা পিছনে থাকে। তো আর এই স্মৃতি আমাদেরকে অনেক উজ্জীবিত করে যে সাঁতার কেটে তো, স্থূল সাঁতার কেটে তো আমরা এই পার থেকে ওপার যাই, কিন্তু এটা কোনো শারীরিক কসরত নয়। মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করা, এই আসলে আমরা আবর্জনের মধ্যেই আছি। আবর্জনাকে সরিয়ে কলিযুগী তমপ্রধান দুনিয়াকে বাইপাস করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। কঠিন হলেও তা অসম্ভব নয়, কারণ আমাদের লক্ষ্য খুব মজবুত। স্বর্ণিম দুনিয়া, সুখের দুনিয়া, সুখধাম বাবা হাতে করে নিয়ে এসেছেন। এই গিফট বাবা আমাদেরকে দেবেন বলে তার জন্য উপযুক্ততা চাই। प्रश्न, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? तो दुनिया में भी, संसार में भी, সংসারও কি আছে, দুনিয়াতেও কি আছে? গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি। তো এখানেও বাবা বলছে, তুমি আমাকে মদত করো, অর্থাৎ পবিত্রতার শিক্ষা তুমি নিয়ে, যেমন সন্ন্যাসী আধা দুনিয়াটাকে রক্ষা করেছে, বাকি পুরো দুনিয়াটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের। আর তার জন্য তোমাদের ধনের সহযোগী হওয়াটা তো যজ্ঞ রক্ষার জন্য একান্ত জরুরি, কিন্তু তার আগে তোমাদের পবিত্রতার সহযোগী।
পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা, এটা বাবার একান্ত প্রয়োজন। যেমন বাবা আমাদেরকে স্বর্গ দুনিয়া গিফট দিচ্ছে, তেমনি এই পবিত্রতার আধারে বাবা আমাদেরকে কি দিচ্ছে, এটাও তো জেনে আমাদের খুশি হওয়া চাই। उत्तर, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने बा राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं बच्चे, तुम मेरी मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। তো এখানে কয়েকটা প্রশ্ন, উত্তরের মধ্যেও কয়েকটা প্রশ্ন লুকিয়ে আছে বা কৌতূহল লুকিয়ে আছে বা তো কলা কায়দা লুকিয়ে আছে। প্রথমে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা যে আমি কি এই যজ্ঞ রক্ষক ব্রাহ্মণ বাবাকে তন মন ধন দিয়ে কি মদত করছি? যদি করছি তাহলে শতযুগে ত্রেতাযুগে কাউর সামনে আমাকে হাত ফেলতে হবে না, অর্থাৎ শতযুগে ত্রেতাযুগে হাত ফেলার কোনো সিস্টেমই থাকবে না। যে মদত করবে সেই আত্মাকে সেখানে প্রেরণ করা হবে। আর রায় লেনে কা, এখানে কোনো একটা প্রবলেমে পড়লেই আমরা 2-4-5 জনের সঙ্গে পরামর্শ করি এটা করা কি না করা। শতযুগে এই উজিরের কোনো সিস্টেম থাকবে না। তারপর বাবা বলছেন कितना बड़ा बाप है, बाबा को अनुभव करना, बाबा कितना बड़ा है। शारीरिक साइज में नहीं, बाबा को अनुभव रोज दिन हमें होना चाहिए। बाबा क्या है, बाबा को हम इग्नोर तो नहीं करते। अगर इग्नोर करते तो बाबा का हाथ में कुछ भी नहीं। फिर बाबा कहते हैं, बाबा कितना रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों को, तुम मददगार नहीं करते हो तो हम स्वर्ग दुनिया कैसे स्थापन करें। एक একটা কথা আমাদের অন্তরে চুপতে হবে। এখানে নেই তো কোনো ভিড়ভাড়, নেই তো কোনো হইচই কোলাহল। তার মধ্যে রাজহংস যেমন দোদ্রাকে টেনে নেয়, আমাদেরও বাবার এই মহাবাক্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা যাতে আমাদের ভিতরে থাকে। এমনি তো বাবার কোনো কথার মধ্যে কোনো লেস ইম্পর্টেন্ট নেই, প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট। তো মহাবাক্যকে সেইভাবে অনুভব করা, মনন চিন্তন করা। আজকে কেন বাবা আমার কাছে, আমাদের কাছে, ব্রাহ্মণ পরিবারের কাছে, এক একটা আত্মার কাছে সহযোগ চাইছে। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई ICS का
इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। बाबा हमें तैरना शिखलाने आए हैं, সাঁতার কাটা শেখাচ্ছে। এটা কোনো স্থূল নয়, सूक्ष्म रूपे আমাদেরকে অনুভব করা যে কলিযুগ দুনিয়াকে পিছনে রেখে কিভাবে পুরস্কার নেওয়ার জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কত বড় পরীক্ষাতে আমরা রোজ দিন আমরা তালিম নিচ্ছি, রোজ দিন আমাদের পরীক্ষা। দুনিয়ার পরীক্ষা সারা বছর পড়ানো হয়, একদিন। এখন তো সিস্টেম অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, মাসিক, কিন্তু এখানে বাবা প্রতিদিন আমাদের পরীক্ষা। तो जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है? कौन है पढ़ाने वाला? पढ़ने वाला कौन है? हम आत्मा है ना। ये थोड़ा सा तो ये बाबा का बात हमारा समझ में आए तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। ये भी निश्चय है ना, हम कल्प हर 5000 वर्षों बाद बाप, टीचर, सदगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। एटाई हमारे जन्मसिद्ध अधिकार। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। पढ़ाई नहीं करेंगे राजाई कैसे बनेंगे? राजाई कैसे मिलेगा? तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। तो बाबा का इंसाफ देखो, बाबा का कर्तव्य देखो। नई दुनिया में राज्य करने के लिए हमें उपयुक्त बनाते हैं, तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं, कला सिखाते हैं, भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, भगवान का कितना नाम देते हैं। हे दीनदयाल, हे कृपा सिंधु, दीननाथ। तो तुम इन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। जाके डेकेছি ना जेने, हे हे बोले, हे दीननाथ, हे भगवान। और एखाने बोलছে আমি হে হে নই, আমি তোমার পিতা, আমি তোমার পিতা শিক্ষক হয়ে এসেছি, আমি তোমাকে সম্পত্তি প্রদান করছি, তার জন্য লায়ক তো হতে হবে। यो भी तुम बच्चे जानते हो कि पुराना दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो ना हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को ही आना पड़ते हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए। तो हमें कितना रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए। पुराना दुनिया नहीं रहेगा, हमारा एंट्री होगा नई दुनिया में। त्रिमूर्ति के चित्रों में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापना। तो जरूर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया चाहिए। हम बन तो गए, लेकिन হয়তো গেছি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বলছি, অন্যরাও বলছে, কিন্তু কর্তব্য কি পালন করছি? ব্রাহ্মণের কর্তব্য অর্থাৎ যে ব্রহ্মার আচরণ, সেই আচরণ কি আমাদের আছে? তৈরি হচ্ছে না হবে? ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। बाबा करण करावनहार ब्रह्मार द्वारा तैरी करছে, আমাদের द्वारा तैरी करছে, আমরা করছি না। तो कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। युक्ति से नई दुनिया के लिए रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट आजकल दुनिया में कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो, फैमिली प्लानिंग करा रहा है, कोई सारी प्रोग्राम उनका हाथ में है, कितना सुझाव देते हैं, घर घर में जाते हैं, कम तो होते नहीं। तो लड़ाई में देखो करोड़ों मनुष्य मरते हैं, कम थोड़ी ही होते हैं। फिर जनसंख्या विस्फोरण हो जाता है, तो जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। तो यूँ भी तुम जानते हो कैसे जनसंख्या कम होगा। जब तक हम ब्राह्मण ब्राह्मणी बने, पवित्रता का धागा बांधे, पवित्रता का दृष्टि रखे, तो भाई भाई का ये संसार बनाए, तभी ये दुनिया में ये एक्सप्लोशन कम होगा। तुम्हारी बुद्धि में
विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, मैं कोई मियाँ मिट्टू नहीं, बहुत सीख लिया, बहुत जान लिया, ऐसे तो नहीं। तैरना भी सीखते हो, बाईपास करना, सातार যেভাবে আমরা কাটি, हैं। तो कहते हैं प्रभु मेरी नैया पार लगाओ। तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। ये भी एक गेम है, ये भी एक शरीर जन्य एक बड़ो करसत। तो सातार যারা কাটে তাদের शरीर निरोगी থাকে। तो बाबा এখানে বলছে अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो फिर यहाँ आते हो। सृष्टि बाबा 84 जन्मेर उत्थान और पतनेर सीढ़ी आमादेर सामने आसा चाই। तो এই সাঁতার আমরা शारीरिक কোনো कसरत नয়, किन्तु मन बुद्धिर द्वारा আমরা একেবারে উপরে उठे যাই। আবারও এখন नीचे नेमे एसेছি। वो तो दिखलाते हैं तो इतनी माइल्स ऊपर में गए, तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो परम धाम में। वो तो स्थूल वस्तु है जिनकी गिनती करते हैं तुम्हारा तो अनगिनात है। चंद्र सूर्य ग्रह तारारो ऊपरे से परम धाम যেখানে विज्ञान पहुँचाते पारे ना। तुम जानते हो हम आत्माएं अपनी घर चले जाएंगी जहाँ सूर्य चाँद आदि नहीं होंगे। तुमको खुशी है ना, वो हमारा परमानेंट घर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, क्यों? मुक्ति धाम में जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। परंतु कोई जा थोड़ी ही सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति महाज्योति में समा जाए, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाए, नहीं आएंगे दुनिया में। तो मुक्ति धाम का किसको पता ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको घर ले जाने के लिए, साथ साथ जाएंगे, है ना। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है हमको घर ले जाने लायक बनाने के लिए। तो हम कितना बाबा का मददगार बने, कितना पवित्रता का फाउंडेशन अपना जीवन में बनाए। तो बाबा कहते हैं तो जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सकते, ना कोई ज्योति ज्योति में समा जाते, ना मुक्तिधाम में जाते, ना मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ तो किया वो व्यर्थ ही गया। गुरु गोसाई যা আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছে ওনারাই জানে না, যা মানুষের হাতে নেই তো আমরা কি করে আশা করি ওনারাও বা কি করে দেবে। तो अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषण का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। तो यो खेल कैसा बना हुआ है, तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान जाते हो, पढ़ाई को भी जान जाते हो, लक्ष्य को भी जान जाते हो। और कर्षत আমরা যা করছি, परिश्रम যা করছি তা ব্যর্থ যাবে না। तो बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दुनिया में कोई गुरु गोसाई का पास नहीं है, देवताओं में भी नहीं। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले जाएंगे? ये बाबा ले जाएंगे ना। इतना निश्चय बुद्धि विजयंती हमारा स्लोगन पक्का रखना चाहिए। कितने गुरु गोसाई लोग हैं दुनिया में, तो कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सदगुरु है एक शिव बाबा, उनका तो कोई चरण है ही नहीं। आधा कल्प আমরা চরণের তালাশ করে এসেছি। আমি তোমার চরণের দাস, আমি তোমার চরণের ধুল। তো বাবা কত प्यार থেকে আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। वो कहते हैं हमको तो चरण है ही नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं। আমি বাপ হয়ে তোমাদের কি করে বলি আমার চরণে এসে পড়ো, আমার তো চরণ হ্যাই নেই। তো
बच्चे विश्व के मालिक तुम बनते हो तो उनसे थोड़ी ही मैं पूज पाऊंगा। विश्वेर मालिक आमिও तो तुम्हाদের नमस्कार करी, आमी की करे बोली तुम्हादेरके जे आमार चरण के पूजा करो, आमार चरण है ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पाँव पड़ते हैं, वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में यह रिगार्ड शिखाते रिगार्ड शिखानो है बड़ोदेर के पा छुए नमस्कार करा, এটা অত্যন্ত ভালো সংস্কার। কিন্তু বিনিময়ে আমরা কি পাই? তো গুরুজন থেকে আদর ভালোবাসা পাই, আর পিতা থেকে আমরা সম্পত্তি পাই, पितार सम्पत्ति लौकिक सम्पत्ति बहुत, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। এটা नम्रता रिगार्ड मैनर। तो छोटे बच्चे आदि सब जाकर पाँव पड़ते हैं, तो आज तो नहीं है, विलुप्त हो गया। यहाँ बाप कहते हैं तुमको पाँव पड़ने से मैं छुड़ा देता हूँ। रिगार्ड रखो, बाबा को प्यार करो, मानो समझो, लेकिन ये पाँव पड़ने का जो संस्कार है उनको मिटा दो। तो कितना बड़ा बाप है। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं तुम मेरे बच्चे मददगार हो। क्या मदद करेंगे? पवित्रता का, है ना। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहे। सत्ययुग में त्रेता युग में उजिरेर कोनो पार्ट থাকবে না। এখানে তো আমরা কোনো একটা সমস্যা পড়লেই তাকে জিজ্ঞাসা করি, আর যদি ভালো হয়ে যায় ভালো, নতুবা যদি কোনো রকম আমাদের রেজাল্ট খারাপ হয় বলে তোমার কথায় আমি, তখন তাকে দোষারোপ গিয়েছি কিন্তু আমি। तो तुमको कोई की राय लेने का दरकार नहीं। तो वहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं बच्चे अब ছিছি मत बनो। রাবণ আমাদেরকে যা শিখিয়েছে তার বিন্দু বিসর্গ যেন আমাদের মনে বুদ্ধিতে আচার আচরণে সংস্কারে না থাকে, এটাই বাবার রিকোয়েস্ট। माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। बख्शिन होती है ना, तो उसमें जब कोई सीखते हैं वो बाबा उनको मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं। हार खाने वालों का मुख पीला हो जाता है। यहाँ भी तुम हार खाते हो। पवित्र रहते रहते हैं तो एक दिन कोई का ऐसा गिरावट हो जाता है। यहाँ हार खाने वालों को कहा जाता है काला मुख कर दिया। ज़्यादा करके बाबा ये देह अभिमान का बात कहते हैं। देह अभिमान आया तो ये नंबर 1 विकार में गिर जाते हैं, तखनी बला है काला मुख। किन्तु ताते की है? साप लुडुर खेला, सापेर माथाय पड़ले आबार नीचे चले आसा। एखाने बाबा बोलছে तो आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं? तो की कमाई सारी चट हो जाता है, फिर नए सिर शुरू करना पड़ता है। बाबा भागिए देय ना যে তুমি রেস্ট্রিক্টেড, স্কুলে আসতে হবে না, না ঘোড়ায় চড়িল, আছাড় খাইল, আবার পড়িল, আবার উঠিল। এটাই হলো সাপ লুডুর খেলা আর ঘোড়ায় চড়ার মতো। তো একবারও যাতে আমরা আমাদের স্থল পতন না হয়, আমাদের যাতে এটাই মনে শক্ত রাখা। যা কিছু মায়া শিখিয়েছে এটা চামড়ার জন্য। तो चमड़ा का नीचे जो आत्मा है तो उसका नशा में रहना है। तो बाबा के मददगार बन, फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हो। 2 पार्टी हैं। बाबा कहते हैं बाबा का बच्चा का भी 2 पार्टी हैं। तो एक है माया के मुरीद, तो एक है ईश्वर के। तो तुम बाप को प्यार करते हो ना। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंती। तुम्हारी है प्रीत बुद्धि तो विजयंती। तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी ही करना है। इतना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो? भगवान तुम्हें टानছে কেন তুমি পিছনে যাও? পিছনের ইশারাকে বুঝো।
हारने वालों को दुख होता है ना, जीतने वाले पर ताली बजते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं। ये शारीरिक नहीं है, ये मानसिक है। यह हमारा बाबा का दिया हुआ ज्ञान को रखना है, तो ये जगह जगह पर हमें काम में लगाना है। तो अब माया को जितना जरूर है, अब माया को जितना जरूर है, माया जीत जगत जीत। बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूलो। बाबा कहते हैं सबको भूलो, न्यारा प्यारा रहो। एक ज्ञान ही सच्चा है, बाबा ही सच्चा है। रियलाइज करें। तो मामे कम याद करो, माया ने तुमको सतप्रधान से तम प्रधान बना दिया है, और फिर सतप्रधान तुम्हें बनना है ना। माया जीत जगत जीत बनना है। यो है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं और फिर बाबा व्यर्थ पाउंड बनाते हैं, मूल्यवान संपद, हीरेर मतो जीवन। तो बाबा ने समझाया है, एक शिव बाबा की जयंती है व्यर्थ पाउंड, अर्थात যাই কিছু দুনিয়াতে আমরা আচার অনুষ্ঠান করি, তো শিব বাবার জয়ন্তী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জয়ন্তী, যেখানে বাবার জয়ন্তীর সঙ্গে আমাদের জয়ন্তীও জুড়ে দেওয়া হয়। बाबर जयंती बच्चर जयंती, दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता, कभी नहीं होता। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। तो वहाँ सतयुग में घर घर में दीपावली रहती है, सबको जोत जगा हुआ रहता है। এখান থেকে যদি স্টার্ট না করি শতযুগে তো ফট করে হবে না। तो मेन पावर से जोत जगती है। पावर हाउस बाबा, बाबा से कनेक्टिविटी रखे तो संसार भी अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छा रहेगा, जो भी कर्म करे वो भी अच्छा ही होगा। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं, बाप के सिवाय तो मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे कौन कहेगा। रोज रोज दिन बाबार এই মিষ্টি কথাটা শোনার জন্য আমরা কত উৎসুক থাকি। रूहानी बाप ही कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापिस एक भी नहीं जा सकते, पाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो, बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। अनेक बड़ा टॉपिक, बुझाबो तो परे, आगे तो निजे बुझते हबे। संगम युगेर पाठटा कत सुंदर एवं कत प्रयोजन हमारे जीवने। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को भी पता नहीं है, यो बेहद का ड्रामा है ना, यो भी तुम समझते हो और कोई कह ना सके। बेहद का ड्रामा है, संगम युग है, हमारा बहुत बड़ा पार्ट मिला हुआ है। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? তাদের কাছে তো কোনো তথ্য নেই। যদি বলে এটা একটা বিশ্ব এক রঙ্গমঞ্চ, আমরা সকলে এক পাঠধারী, সক্রেটিস বলেছিলেন, কিন্তু এতটুকুই ওনার ভাবনা থেকে বলেছিলেন, কিন্তু ওনার কাছে তো কোনো ম্যাটেরিয়ালস নেই। बाबर काছে যে ज्ञान আছে, यह तुम 84 के चक्रों को जानते हो, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है, याद करना है। चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कितना सहज बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम कितना धक्का खाते आए हो, तुम कितना दूर दूर स्नान करने के लिए जाते हो। एक लेक है कहते हैं, तो उनमें डुबकी लगाने से परिया बन जाता है। तो अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परिजादा बन जाते हो। एटाई हलो सेई लेक, जेखाने रोज एसे ज्ञान सागरे आत्मा के स्नान करानो, सेखाने तो शरीर के स्नान करानो है। बाबार ये महावाक्येर तात्पर्य सारार्थ। तो बाबा रोज दिन कितना सुंदर पॉइंट हमें सुनाते हैं। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं यो जैसा परी बन गया। अभी तुम भी रत्न बनते हो। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंखे आदि हो नहीं सकते। जे मानुष परीर मतो हये जाबे, डाना काटा परी,
তো উড়ে উড়ে আকাশে চলে যাবে, বাস্তবে এমনটা নয়। তো এটা হলো আমাদের ফিজিক্যাল বডি, আর ভিতরে আছে আত্মার সঙ্গে জড়ে অ্যাঞ্জেলিক বডি। মন বুদ্ধি দ্বারা আমরা অ্যাঞ্জেলিক বডিকে যেমন ফর্ম আমরা দেখাই, তো তেমন ফর্ম আমরা ক্রিয়েট করতে পারি। এটা কল্পনা নয়। মানুষ যখন মারা যায় তখন মানুষ তার যে ছাঁচ, তার যে দেহের আকৃতি, আত্মা ওই দেহের আকৃতি সহকারে একটা ছায়া শরীর উড়ে যায়। তো এটাকে এই সঙ্গম যুগে বাবার শিক্ষার দ্বারা, আত্মসচেতনতার দ্বারা, যোগ শক্তির দ্বারা আমাদেরকে অনুভব করা। ये फिजिकल बॉडी कखनो उठते पारे ना, तो ऐसे उड़ ना सके, उड़ने वाले है ही आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहा जाता है, आत्मा कितना छोटी होती है। तो जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो। अंतिम समय কি করে আমরা যাব বাবার ঘরে, এটাও আমাদের শিক্ষার একটা অঙ্গ। अंतिम সময়টাকে দেখা। तो बुद्धि से समझ सकते हो, यह तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। एटो बाबा बोलছে কি তোমাদের শিক্ষার অন্তিম পার্ট। এখনে যখন যদি সিরিয়াস না হও তো অন্তিমে ঝট করে তোমার সাক্ষাৎকার হবে না। যেমন ভক্তরাও কিন্তু অনেক সময় ধরে অপেক্ষা রাখে, আমি হনুমানের সাক্ষাৎকার পেতে চাই, গণেশের সাক্ষাৎকার পেতে চাই, লক্ষ্মীর সাক্ষাৎকার পেতে চাই। তো ভগবানও ভাবনার ভাড়া পূরণ করে। हनुमान गणेश आदि तो होते नहीं वास्तव में ये तो हनुमान देवता, उनका पूछ होगा, मुख ऐसा होगा, वास्तव में ऐसा नहीं है। और गणेश का ये हाथी का मुख, हाथीर मतो मुख, पेट एत बड़ो, तो वास्तवे এটা নয়, এটা কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে। তো গণেশের ইয়াদগার হলো বিঘ্নদাতা গণেশ। তার অনেক, গণেশের এক একটা কানেরও একটা ব্যাখ্যা আছে, চোখ ছোট ছোট তারও একটা ব্যাখ্যা আছে, সুর তারও ব্যাখ্যা আছে। তো বাবা বলছে কি, তো ভক্তরা যে এরকম ভাবনা রাখে তাদেরকেও বাবা भावना पूर्ण करे। तो कहते भी हैं तो बाबा तो है ही बिंदिना, तो उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है, तो जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे हम कर्म करते हैं, आत्मा कितना छोटी है, उससे 84 का चक्र नुदा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यो बुद्धि में हो कि हम 84 जन्मों कैसे लेते हैं। জীবনটাকে নিয়ে তো অনেক বাজি রাখি, অনেক কিছু পড়াশোনা করি, ডিগ্রি হাসিল করি, কিন্তু এটাও যে প্রদীপের নিচে অন্ধকার, নিজেকে না জানা। तो आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ होता है, वंडर है ना, वंडर। छोटो आत्मार मध्य ठीक 5000 বছরের ড্রামা ভরা আছে এবং প্রতি কল্পে তা রিপিট হয়। এই চেহারায় এই জন্মে আমি এখানে আসবো ইন্দ্রসভাতে, বাবার কথা বুঝবো, কিছু বুঝবো না, কিছু ধরবো, কিছু ধরবো না, আর ধরলে তো কামাল, না ধরলে তো गिरावट। तो बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं ये विचार सागर मंथन करते रहते हैं, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, विचार करना चाहिए। बाबा आज के বলেছেন আমি তোমার মদদগার, তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। तो किसको कैसे समझाए, कितना तुम एक एक से माथा मारते हो फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही तो बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा हम तुम्हारा कल्प पहले जैसा बच्चा है, हमें मधुबन जाना है। ऐसा भी बहुत उदाहरण है, 7 दिन कोर्स करके मधुबन चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना नब्जों को देखो। बहन जी भी परमिशन उनको देते हैं जिनका लगन है, 7 दिन में ही उनका लगन ऐसा हो जाता है तो बहन जी को देना पड़ता है। कोई
तो कुछ भी नहीं समझते हैं। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है तो सारा सोना का मंदिर नहीं है, तो ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागबान मिला है। बागबान এই বাগানের মালিক আমাদেরকে কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করছেন, तमोप्रधान থেকে शतप्रधान तैयारी करছেন। तो कांटे से फूल बनने की युक्तियाँ बतलाते हैं। किसी को दुख ना देना, किसी से दुख ना लेना, एडजस्टमेंट। तो একটা হচ্ছে কি ম্যাচিং পার্সোনালিটি, এক হচ্ছে কি মিস ম্যাচিং পার্সোনালিটি। তো আমাদের ম্যাচিং পার্সোনালিটাই আমাদের বাবা চায় গড়ে তুলতে। ম্যাচিং সকলের সঙ্গে আমাদের অ্যাডজাস্ট করে চলতে হবে, কি ঘরে कि बाबार घरे कि बाहरे। तो गायन भी है ना, तो गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था तो कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खरे खरे गिर पड़ता था तो खुदा का बागीचा देखता था। अब खुदा का बागीचा देखने वाला तो खुदा ही खुद होगा ना, दिखाने वाला। तार भावनाईटा एमन छिलो आमी बागीचा देखब। तो एखाने आसतो ध्यान करतो और बागीचा देखतो, जेमन गणेश के देखतो, केउ हनुमान के देखतो, सेও बागीचार प्रत्याशी छिलो। सेও देखतो भगवान आमाके गोलाप दिएছে, एटा फूल दिएছে। और कोई कैसे सिखलाएंगे? तुम्हारी वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं। खुदा तो वहाँ रहते नहीं सत्ययुग में, खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बात तुमको समझाते हैं, तुम्हारा खुशी बहुत जनरेट होता है। खुशी ये लौकिक धन वस्तु, खाने का चीज़, पहनने का चीज़, ये थोड़ा दिन थोड़ा समय खुशी देते हैं। ये इंद्रिय सुख, बाबा हमारे के अतीन्द्रिय सुख दीक्षें, अंदर में बहुत खुशी होना चाहिए। अभी हम सुखधाम में जाते हैं तो वहाँ दुख की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं सुखधाम शांति धाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करते हो? आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करते हो, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। झाड़ से नंबर बार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकते? सन्यासी लोकरा तो ये ड्रामार माझखाने एसेছে, तारा বলছে জ্যোতিতে মিশিয়ে যাব। আরে এটা তো বাবা বলছে কি নিচে যেমন ঝাড় আছে মনুষ্য শরীরের ঝাড়, সেখানে আত্মার ঝাড় আছে। তারা एकदम परमधाम खाली होले तारपर तो जावार पाला, बाबा गए परमधामेर गेट खोलबे। तो जबकि बाप यहाँ है, बच्चों को ट्यूशन दे रहा है, तुम बच्चों को रोज़ समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम का जाने का प्रैक्टिस करो। बाप को भूलने कारण ही तुम दुखी होते हो। माया का मोचरा लग जाता है ना। अब जरा भी मोचरा नहीं खाना है, समझना है कौन माया है कौन बाबा है। तो मूल है देहाभिमान। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम डायरेक्ट पढ़ रहे हो इंद्र सभा में बैठ करके। तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट टीचर भी है। बाबा कहते आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। ओबीडिएंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं तो ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चे पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं ना, तो अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाता है, बिकार में चले जाते हैं। बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्माता तो अच्छा था। लौकी क्यों पितार नाकचुल काटे एमन बच्चों तो अनेक देखा जाए। किन्तु एखानेও बाबार হয়ে যদি আমরা ট্রেটার হয়ে যাই, নিন্দুক হয়ে যাই, ডিসসার্ভিস করি। সার্ভিস করতে জানি না ঠিক আছে, কিন্তু ডিসসার্ভিস করাটা মহাপাপ। ভগবানের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া, না জানা, না জানলে 100 বার বোঝার অধিকার আমাদের আছে। तो बाबा कहते हैं
तो एक के कारण कितना बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितने ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते हैं। शुरू बाबा के क्यों घर दित ना, बाबार ब्रह्मा कुमारी नाम सुन ली तो यहाँ तो कितना सहन करना पड़ा शुरू में। तो আমরা তো এখন তাদের জমানো কামানো प्रॉपर्टी আমরা पाচ্ছি। तुम बच्चे किसी का घर बार नहीं छोड़ाते हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्यो डबल सिरताज थे। जरा घर बार छोड़ाए तारा हलो तो सन्यासी। अब तुम पुजारी बन पड़े हो, अब बाप फिर से तुम्हें पूज्य बनाते हैं। तो बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। देरी थोड़ी ही है, नया दुनिया बन जाएंगे। हम यहाँ किसके लाख लेकर के क्या करेंगे? गरीबों को राजाई मिलती है ना, बाप गरीब निवाज है। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहा जाता है? तो बड़ लोकेर धन चाই ना, गरीबेर बिंदु बिंदु करे सिंधु हो जाए। तो भारत भी कितना गरीब है, तो उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। मातादेर के बाबा तो अनेक ऊँचे उठाচ্ছেন, जो साहूकार हैं वो इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाई कितने आती हैं, उन पर अत्याचार भी होता है, फिर भी बाप को पुकारती हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो प्रभात फेरी में भी पहले माताएं होना चाहिए, बेज भी तुम्हारा बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए। यहाँ ये ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। तो बाबा कितना कला আমাদেরকে শেখাচ্ছেন, দুনিয়ার মানুষের তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। ট্রান্সলাইট আগে থাকবে লক্ষ্মীনারায়ণের, খুব সুন্দর ফটো বাধাই করে ব্যাটারি দিয়ে লাইট জ্বলবে। তো প্রথমেই থাকবে মাতারা, তাদের মধ্যে বেস থাকবে খুব সুন্দর আকর্ষণ করার মতো। তো सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है, এটাই আমাদের স্লোগান, এটাই আমাদের মনন চিন্তন। दुनिया परिवर्तन होच्छे, बाप से ही वर्षा मिल रहा है, कल्प पहले माफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। एमन प्रभात फरी आमरा कखन करब, किभाबे करब, मातारादेरके सामने रखिए, सामने ट्रांसलाइट रेखे कैसे सार्विस को अमल में लाए। टाइम तो लगेगा ना। कखनेर मुरली एखोनो आमादेर सामने, एखोनो आमादेर काछे समान प्रयोज्य, एमन सेवा आमादेर करा चाই। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। नंबर 2, अंदर में खुशी रहे, हम अभी
शांतिधाम सुखधाम जाते हैं। बाबा ओबीडिएंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। वरदान, हर संकल्प समय वृत्ति और कर्मों द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी बनो। सोते हुए भी सेवा होना चाहिए। सोते समय यदि कोई आपके देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। हर कर्म इंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्मों द्वारा कर्मयोगी भावों का वरदान देते रहो। हर कदम में पदम की कमाई जमा करते रहो। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। आज का स्लोगन, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो, तो मायाजीत बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो ना, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वो अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। যেমন दुनियार तो एटम बम अनेक बड़ो पार्टिकल के भेंगे 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 तो परमाणु बनानो হয়েছে और तार शक्ति कतटा बड़। तो आमादेर एखन जे बाबा बोलছে कि তোমাদের বাণী দ্বারা সেবা, কর্ম দ্বারা সেবা, তো অনেক কিছুই তো আমরা করি, কিন্তু সংকল্পের সেবা হচ্ছে সবচেয়ে সূক্ষ্ম অ্যাটম। তো এটাকেই নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি ভাইব্রেশন বৃত্তির দ্বারা এটাও আমরা করতে পারি। এতটুকু অগ্রসর আমাদের হতে হবে। ঠিক है ना? সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হলো আমাদের সংকল্প শক্তি। তার জন্য অন্যের অকল্যাণ কামনা নয়, নিজের কল্যাণ অন্যের কল্যাণ করতে 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 আমাদের মধ্যে একটা শক্তি এসে যাবে। ঘূর্ণনের শক্তি আছে না, এই পাখা ঘুরছে, তার ঘূর্ণনের শক্তি আমরা হাওয়া পাচ্ছি,
তো এই মনকেও যদি আমরা ঘোরাই, তারও একটা শক্তি, এটাকে দেখা যায় না। যার প্রতি আমি দেই, শোয়ার মধ্যেও কিন্তু বাবা বলছে কি, মনে যদি এমন একটা ভাবনা নিয়ে শো, দেখবে এক ঘুমেই রাত পোহাবে, আর সেখানে সেই ক্রিয়া কাজ করতে থাকবে। স্লোগানে বাবা বলছেন আমাদের পার্সোনালিটি, যে আমরা কারা, আমরা কোথায় যাচ্ছি, শতযুগের মহারাজা মহারানী হব, এমন পার্সোনালিটি স্মৃতিতে রেখে তো মায়াকে পর্যদস্ত করো। বরদানে বাবা বলছে সময়, সংকল্প, মনোবৃত্তি আর কর্ম। এমনি তো আমরা নিজের জন্য করছি, কিন্তু যজ্ঞের জন্য কতটা করছি? সংকল্প দিয়ে, সময় দিয়ে, বৃত্তি দিয়ে, কর্ম দিয়ে নিরন্তর যদি আমরা করতে পারি, তবেই আমাদের নিরন্তর সেবাদারি বলবে। ধারণাতে বাবা বলেছে যে আজকের যে মুখ্য পয়েন্ট, যে বাবার প্রতি ভালোবাসা রেখে বাবার মদতগার হওয়া। এমন নয় যে কেউ বলল তো আমি ঝট করে ইমপ্রেসড হয়ে গেলাম, না, প্রথমে ভালোবাসা, তারপর मददगार। तन मन धन से तो करना है, फिर पवित्रता का फाउंडेशन हमें पक्का रखना है।